پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے نظام شمسی کی معلومات حاصل کی تھی، جس میں سورج کے اطراف 8 سیارے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اسی نظام شمسی کے تیسرے سیارے جس پر ہم رہتے ہیں یعنی زمین، اس کی گردش کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے ہماری زمین جو خلا میں بالکل اسی طرح سے گردش کر رہی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین گول گول گھوم رہی ہے، بالکل کسی لٹو کی طرح۔ جب ہم لٹو کو زمین پر چھوڑتے ہیں تو لٹو گول گھومتا ہے، بالکل جیسے اپنے درمیان میں کوئی محور ہو اور وہ اس کے اطراف گول گھوم رہا ہے، جبکہ یہ محور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے زمین بھی گول اس طرح گھومتی ہے جیسے درمیان میں اس کا محور ہو، بالکل درمیان میں گول گول گھومتی ہے، اور اس طرح گول گھومنے کی وجہ سے زمین کا محور تیار ہوتا ہے، اور اس محور کے گرد زمین گھومتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے محور کے گرد زمین کے گردش کرنے کو زمین کی محوری گردش کہتے ہیں۔ چلیے اب زمین کا تھوڑا سا نزدیک سے مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم استعمال کریں گے گلوب کا۔ گلوب کیا ہوتا ہے؟ گلوب زمین کا ماڈل ہوتا ہے۔ جس طرح سے زمین اصل میں ہے، اس کی ایک کاپی یا ماڈل کے طور پر گلوب کو بنایا گیا ہے۔ اس میں جو فرضی لکیریں ہیں، جو نام ہیں، وہ سب فرضی ہے تاکہ ہم زمین کی اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکیں۔ تو دیکھیے گلوب میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ ایک لائن ہے یا لکیر ہے۔ تو اس لکیر کے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف 2 قطب ہے۔ جو اوپر کا قطب ہے جس پر N لکھا ہے اسے کہتے ہیں نارتھ پول، اور نیچے جہاں پہ S لکھا ہے اسے کہتے ہیں ساؤتھ پول، جسے ہم اردو میں شمالی قطب اور جنوبی قطب اس طرح کہتے ہیں۔ اس کے بعد بالکل درمیان میں جو لکیر ہے وہ ہے زمین کا محور، جس کی وجہ سے زمین دائیں اور بائیں 2 حصوں میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد زمین کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک نیلے رنگ کا خط دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ خط ہے خط استوا۔ اس خط استوا کی وجہ سے زمین 2 حصوں میں یا 2 نصف کروں میں تقسیم ہوتی ہے، شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ۔ آئیے ایک تجربہ کرتے ہیں۔ ایک چاکول لیجیے اور دکھائے ہوئے طریقے سے اسے گلوب کے اوپر اسی طرح سے لٹکائیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین کے محور اور چاکول کی پوزیشن، ان کے بیچ میں ایک زاویہ بن رہا ہے۔ اس زاویے کے بننے کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین اپنے محور پر جھکی ہوئی ہے، یعنی زمین بالکل اسٹریٹ نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، اور اسی جھکی ہوئی حالت میں
वो गर्दिश करती है। आइए अब हम ज़मीन पर तुलुए आफ़ताब और गुरूब आफ़ताब की पहेली को सुलझाते हैं। जब दिन निकलता है तब हम कहते हैं कि सूरज निकल आया है, और जब शाम होती है तो हम कहते हैं कि सूरज ढल गया है। तो क्या सूरज कहीं से उगता है और कहीं पर जाकर डूब जाता है? और वो कौन सी जगह है जहाँ पर सूरज जाता है? तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि सूरज कहीं नहीं जाता, बल्कि हम जाते हैं। और हम कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? तो आइए हम इस बात को एक तजुर्बे की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस तजुर्बे के लिए हमें ज़रूरत होगी एक टॉर्च की और एक बॉल की। तो हम क्या करेंगे, एक टॉर्च लेंगे और एक बॉल को रख कर उस टॉर्च की मदद से बॉल के ऊपर रोशनी करेंगे। इस तरह करने से क्या होता है, क्या बॉल के पूरे हिस्से पर रोशनी फैल जाती है? नहीं, बल्कि जो टॉर्च के सामने हिस्सा है सिर्फ वहीं पर रोशनी दिखाई देती है और पीछे अंधेरा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब ज़मीन सूरज के सामने गर्दिश करती रहती है और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उस हिस्से में उस वक्त दिन होता है और पीछे के हिस्से में रात होती है। इस तरह ज़मीन गर्दिश करती रहती है और जो जो इलाका सूरज के सामने आता जाता है वहाँ पर दिन होता है, और जिस इलाके में सूरज की रोशनी नहीं होती है वहाँ पर रात होती है। इसी तरह से वक्त भी बनता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये सब ज़मीन के घूमने की वजह से या ज़मीन के गर्दिश करने की वजह से होता है, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से। इसको हम एक ट्रेन की मदद से समझ सकते हैं कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हरकत हम करते हैं और बाहर की चीज़ें साकिन खड़ी होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि साल किस तरह वजूद में आते हैं। हमने सीखा कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। ज़मीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करने के साथ साथ एक बैज़वी रास्ते पर सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए ज़मीन को जो वक्फ़ा दरकार होता है उसे एक साल कहा जाता है, और इसकी मुद्दत 365 दिन और 6 घंटे होती है। सूरज के गिर्द ये रास्ता बैज़वी शक्ल का होता है जिस पर ज़मीन गर्दिश करती है। इस गर्दिश के दौरान तस्वीर में दिखाए गए तरीके से जब ज़मीन सूरज के बहुत नज़दीक आ जाती है उस वक्त और उस हिस्से में मौसम गर्मा होता है, और जिस वक्त ज़मीन गर्दिश करती हुई आगे बढ़ती है और सूरज से दूर हो जाती है उस वक्त उस निस्फ़ कुर्रे में मौसम सरमा होता है। इस तरह से मौसम वजूद में आते हैं। बच्चों, ज़मीन से नज़र आने वाला खूबसूरत चाँद दरअसल एक सैयारा है। जिस तरह से हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, उसी तरह से चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। और क्योंकि चाँद भी गोल है, इसलिए ज़मीन से हमें चाँद का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है, यानी कि हमें ज़मीन पर से हमेशा चाँद का एक ही रुख नज़र आता है। चाँद क्योंकि सैयारा है इसलिए वो खुद रोशन नहीं होता, बल्कि सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ने की वजह से वो हमें ज़मीन से नज़र आता है। पूनम की रात को हमें चाँद का ज़मीन की जानिब का
पूरा हिस्सा नज़र आता है, जबकि अमावस की रात में चाँद का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। पूर्णिमा से अमावस तक ज़मीन से चाँद का नज़र आने वाला रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है। अमावस से पूर्णिमा तक चाँद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुंचने के लिए चाँद को 14 ता 15 दिन दरकार होते हैं। इस पंद्रवाड़े को रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चाँद का ज़मीन की जानिब का रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है और 14 ता 15 दिनों के बाद दोबारा अमावस आती है। इस पंद्रवाड़े को तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। इस तरह एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा तकरीबन 28 ता 30 दिन का होता है। इस मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा सबक और ये सारे नुकात समझ में आ गए होंगे।